मसीह की। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। लाइफ ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के तरफ से आप सभी को स्वागत है। और आज की इस आराधना में जाते हुए एक गीत को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। और आज उसके जन्मदिन को स्मरण करते हुए एक इंग्लिश गाना गाएंगे, जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम। Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare his room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven, nature sing. Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Lord Jesus Christ. और आप सभी को यीशु मसीह के अतुल्य नाम से अभिवादन देते हैं। Joy to the world, the Lord has come. और संसार के लिए आनंद है क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है। Hallelujah. The Hallelujah. whole world is celebrating Christmas now. और पूरे संसार आज मसीही के आने का उत्सव मना रहा And है। today we are also. और आज हम भी। And this is indeed a beautiful day that we celebrate, because this is the day when we remember that the Lord came down for us. और आज के दिन जो हम इस उत्सव को मना रहे हैं, आज के दिन यादगार है क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह स्वर्ग से धरती में आया था। Christmas is a big day, my friends. और जो क्रिसमस होता है ये बड़ा दिन होता है। Because he left all his richness and all his every privilege in heaven and came down to you and came down for us and for you and for us to this earth. क्योंकि वो उसने अपने सारे चीज को छोड़कर, सारे सम्मान को छोड़कर उसने इस धरती पे आया था उस दिन। Heaven is a beautiful place. और स्वर्ग बहुत सुंदर स्थान है। It has everything that he wants. और उसके पास जो वो चाहता था वो सब कुछ था। But still he came down for you and for me. और फिर भी वो आपके लिए और मेरे लिए धरती पे आया। So that one day we can have a feast, a fellowship, a revival in the heavens. और ताकि एक दिन ऐसा होगा कि हमारे साथ एक भोज होगा, सहभागिता होगा और हम स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. It is beautiful that the Lord and God of all the earth comes down to his creation to save his creation. और ये हमारे लिए बहुत सुंदर बात है क्योंकि पूरे संसार के सृजनहारा अपनी सृष्टि को देखने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए जगत में आया था। It is beautifully written, that song that says, "Joy to the world, the Lord has come." It is a reason to be happy. और ये गाने को अच्छी सुंदरता के साथ लिखा गया कि संसार के लिए आनंद है क्योंकि यीशु मसीह आया है। We wait for 11 months to have Christmas every year. और हम हर साल में 11 महीने इंतजार करते हैं क्रिसमस मनाने के लिए। And on the 12th month we celebrate Christmas. और 12 महीने में हम क्रिसमस मनाते हैं। Every year there is celebration all over the world. और सारे संसार में हर साल इस क्रिसमस को मनाया जाता है। Different customs, different cultures, different traditions, but they celebrate the birth of Jesus. और भिन्न संस्कृति, भिन्न परंपरा है, लेकिन सारे लोग यीशु मसीह के जन्मदिन को मानते From हैं। last few years I have been celebrating Christmas in different countries, and I have seen that culture and the tradition they have is different than what we have. और पिछले कई सालों से मैं ये मसीह जन्मदिन को मान रहा हूँ। भिन्न भिन्न देश में जाकर देखा है कि भिन्न भिन्न उनकी परंपरा होती है, भिन्न भिन्न उनकी प्रथा होती है। The customs may be different, the cultures may be different, the procedure of celebration may be different, but the reason remains the same. और हो सकता है कि उनके जो संस्कृति, परंपरा, पहनावा दूसरा हो सकता है, लेकिन जो उत्सव को जो मनाया जाता है वो समान रहता है। This is a season where
businesses grow so much because people buy things. और इस सीजन में, इस ऋतु में जो व्यवसाय होती है वो बढ़ती है क्योंकि लोग बहुत चीज को खरीदते हैं। So everyone is happy. और इस समय में बहुत लोग खुश होते हैं। And this is the season where everybody rejoices. और ये एक ऐसा समय है कि हर एक लोग आनंद मनाते One हैं। of the other reason is they have survived 11 months and they are in the last month and they are alive. They rejoice in that. और एक कारण ये है कि वो लोग 11 महीने तक जिंदा रहे और 12 महीने के लिए वो लोग धन्यवाद देकर आनंद मनाते But हैं। the real reason for this season is Jesus Christ is coming down to the earth. लेकिन इस समय का जो मुख्य कारण है, परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में आया था। Hallelujah. Hallelujah. The earth rejoices because the Savior is here. और ये संसार पूरी तरह से आनंदित है क्योंकि जो उद्धार करता है वो आज हमारे साथ We है। and we together celebrate because we see salvation in Christmas. और हम एक साथ इस आनंद को मनाएंगे क्योंकि मसीही जन्म में हम उद्धार को देखते हैं। My friends, we rejoice because we have the greatest gift of the whole world. और हम आनंद को इसलिए मनाते हैं क्योंकि महान जो दान है वो हमारे पास है। And we remember it every year. और इस चीज को हम हर साल मनाते हैं। But what I want to say today is the first Christmas was not as easy as it is for us. और जो पहला जो क्रिसमस था ये उतना सहज नहीं था जैसा आज हमारे साथ हो They रहा है। had to wait very long to celebrate the first Christmas. और उनको इंतजार करना पड़ा इस पहले मसीही जन्म को मानने के It लिए। took a lot of time and lot of things happened to celebrate the first arrival of their Savior. और ये बहुत समय को लिया और बहुत दिन तक उनको इंतजार करना पड़ा उनके जो उद्धारकर्ता के ये जन्मदिन को मानने के लिए। To see how much time it took, we have to see and go back to the book of Genesis. और कितना समय लिया इसको अगर हम जानना चाहते हैं तो उत्पत्ति की किताब तक हमें जाना पड़ेगा। God created Adam and Eve और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया beautifully in His image. और उसके स्वरूप में बहुत सुंदर से Gave बनाया them all the rights and all the privileges. और सारे सौभाग्य और सारे अधिकार को उनको दिया। But still they fell into sin. और फिर भी वो लोग पाप में गिरे। In Genesis chapter 3 you will see that they fell into sin. और जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय को देखते हैं तो वो लोग पाप में गिरे। And that was the first time God announced Christmas. और उस वक्त पहली बार परमेश्वर ने वहाँ पे घोषणा किया क्रिसमस के बारे में। God announced that my son is going to come to clear this mess up. और परमेश्वर ने उस वक्त इस चीज का घोषणा किया कि मेरे पुत्र आने वाला है इस सारे चीज को ठीक करने के लिए। Genesis chapter 3 verse 15 God said something. और उत्पत्ति के 3 के 15 आयत में परमेश्वर कुछ कहता है। And he says, I will put hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring, and he will strike your head and you will strike his heel. This was the declaration that the Son of God is going to come and strike and kill the devil. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये जो है ये पहली बार परमेश्वर ने ये कहा कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है और शैतान के सारे काम को ध्वंस करने वाला है। This was the first ray of hope given to humankind that even if you have messed up, there is a hope that is going to come and heal you. और ये पहली बार है कि एक आनंद की वार्ता को यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य अगर निराश है तो यहाँ पे कुछ आशा है। So when God announced this, did this happen the next day? और जब परमेश्वर ने इस चीज को घोषणा किया तो ये क्या अगले दिन हुआ? No. This is what has been declared before, I think nearly 4,000 years before Jesus came. और ये चीज जो परमेश्वर ने घोषणा किया ये 4000 साल पहले घोषणा किया। 4,000 years ago.
और 4000 साल पहले। So for them, the wait for Christmas was 4,000 years. और इनके लिए परमेश्वर की जन्मदिन पालन करने के लिए 4000 साल इंतजार करना पड़ा। For us, it is a year. और हमारे लिए 1 साल। We celebrate Christmas every year. और हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं। Imagine about these people who lived in this 4,000 years. और याद रखिए, चिंता करिए कि जो लोग 4000 साल तक ये लोग इंतजार कर रहे थे, Every day waiting for that man of God, the Son of God, to come and kill the devil. और हर साल हर एक दिन ये लोग परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु का इंतजार कर रहे थे कि कब आए और इस शैतान के सारे चीजों को ध्वंस करे। Let's get back to the book of Isaiah. आइए हम असाया किताब के ओर जाते हैं। The book of Isaiah was written before 700 years of Christ coming to the earth. और यीशु मसीह के आने से पहले 700 साल पहले इस किताब को लिखा गया था। And in chapter 7 verse 14 it says, this is the reason the Lord himself will give a confirming sign. Look, this young woman is about to conceive, will give birth to a son. You, young woman, will name him Emmanuel. और जब हम ईसाया के 7 अध्याय उसके 14 आयत को पढ़ते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। Hallelujah. हालेलुया। This is before 700 years of Jesus coming. और यीशु मसीह के 700 साल आने से पहले इस चीज को लिखा गया था। So the wait for Isaiah and his people and the time he was living in, the wait for their Christmas was 700 years. और असाया और उन लोगों को 700 साल इंतजार करना पड़ा यीशु मसीह का जन्मदिन को मानने के लिए। For some it was 4,000 years. और कुछ लोगों के लिए 4000 साल। For some it was for 700 years. और कुछ लोगों के लिए 700 साल। And then we see in the last book of the Old Testament, we see that Malachi was written before 400 years of Jesus' coming. और जब हम आखिरी के पुराने नियम के आखिरी की किताब मलाकी को देखते हैं तो वो 400 साल पहले इंतजार कर रहा था। After the book of Malachi to the book of Matthew, there is an intertestamental prayer, a silent prayer of nearly 400 years. और जब हम मलाकी के बाद देखते हैं नए नियम मत्ती में, जो शांत का जो समय था, उनको लगभग 400 साल इंतजार करना पड़ा। For these people in the time of Isaiah, at least God was talking to them. और इन लोगों के समय में परमेश्वर इनसे बात किया होगा। At least he was talking to them. और उनसे बात किया होगा। But after Malachi, there is no sign, no prophecy, nothing for 400 years. और मलाकी के बाद जो शांत का समय था, 400 साल न भविष्यवाणी हुआ, ना परमेश्वर किसी से बात किया। What am I preaching to you on this Christmas? और आज के क्रिसमस में मैं आपसे क्या प्रचार कर रहा My हूँ? topic today is the wait for Christmas. और मेरा जो आज जो संदेश है वो है बाट जोतते रहो क्रिसमस के लिए, इंतजार My करो। friends, for some it was 4,000 years. मेरे मित्रों, कुछ लोगों के लिए 4000 साल लगा। For some it was 700 years. और कुछ लोगों के लिए 700 साल लगा। For some it was 400 और years. कुछ लोगों के लिए 400 साल लगा। And for some it took only nights to travel, the wise men. और कुछ लोगों के लिए बस रात के जो यात्री थे उनको बस कुछ समय लगा, रात को बस लगा, जो लोग पंडित लोग थे। Those wise men had to travel only in the night because they were following a star. और जो पंडित लोग थे उनको बस एक रात लगा क्योंकि वो लोग उस तारे के पीछे होकर जा रहे थे। They were following the star, so the travel time that they could afford was only the night. और वो लोग तारे को देखकर जा रहे थे और हो सकता है जो उनका जो यात्रा था शायद वो रात का यात्रा था। Because they were traveling from the east to come to that place.
और वो लोग पूर्व पश्चिम ओर से होकर उस जगह को जा रहे थे। My friends, what do I mean to tell you today? और मेरे मित्रों, इसका अर्थ क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा My हूँ? friends, people waited for this salvation for a very, very, very long time. और मेरे मित्रों, ये लोग बहुत साल तक उस उद्धार को देखने के लिए इंतजार कर रहे And थे, that's why they celebrated Christmas like never. और इसीलिए वो लोग इस क्रिसमस उत्सव को मना रहे हैं जैसे कभी नहीं हुआ। But because we celebrate it every year, we don't know the real meaning of Christmas. और हम हर एक साल क्रिसमस मना रहे हैं, इसीलिए इसका मूल्य को हम नहीं समझ पा For रहे हैं। some of us, it is about the tree, Christmas tree. और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये क्रिसमस एक पेड़ को लेकर हुआ है, For some, it is about the decoration. और कुछ लोगों को ये लगता है कि सजावट को लेकर होता है, For some, it is about new clothes. और कुछ लोगों के लिए पहनावट होता है, For some, it is about good food. और कुछ लोगों के लिए उत्तम खाने होता है, For some, it is about a family get together. और कुछ लोगों के लिए परिवार का इकट्ठा होना होता है। Everybody has a reason for their own Christmas. और हर एक के पास इसका कारण है, क्रिसमस का कारण But है। the real reason of Christmas is Christ Jesus, my friends. लेकिन सच में इसका जो सही कारण है वो यीशु मसीह ही है मेरे My मित्र। friends, and that's what we have forgotten. In Christmas today, we have everything but Jesus in it. हमारे मित्रों, हम यही सोचते हैं कि ये सारे चीज क्रिसमस होती है, लेकिन यीशु मसीह नहीं होता है। My friends, these people, when they celebrated Christmas for the first time, they knew what exactly it meant. और जब ये लोग मसीह के जन्मदिन को मान रहे थे, उस वक्त इनको इसका सही मतलब मालूम था। Today, you and I have forgotten what the real meaning of Christmas is. लेकिन आज हम, आप और मैं भूल गए हैं कि ये जो इसका सही अर्थ क्या है। We have taken Christ out of Christmas. और हम मसीह के जन्मदिन में मसीह को अलग रखे हैं, And we have replaced it with many other things. और हम यीशु मसीह को अलग करके बहुत सारे चीजों को उस जगह पे रखे हैं। But my friends, the real reason for Christmas is the child that is born for you and for me, who has come to save us from our sins. और इसका सही कारण यह है मेरे मित्रों कि एक शिशु आएगा और वो आपके और मेरे पापों से, हमारे पापों से उद्धार My करेगा। friends, the real reason for Christmas is what Isaiah said, it's Emmanuel. और सही जो अर्थ है, जैसा यशायाह ने कहा कि उसका अर्थ है इमानुएल। The Christmas means God with us. और जो मसीह का जन्मदिन का अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। It is a big thing, my friends. और ये हमारे लिए बड़ा चीज है मेरे मित्रों। Before that, it was not possible to have God with you, but now it is that God is with you in flesh. और पहले ये नहीं होता था कि परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आज परमेश्वर आपके साथ है। If you read John chapter 1, you will see that the word become flesh. और अगर आप यूहन्ना के 1 अध्याय को पढ़ोगे तो वचन देहधारी बना, And it became dwelling about us. और वो हमारे साथ रहने लगा। My friend, the wait for Christmas for people was very long. और मेरे मित्रों, मसीह के जन्मदिन को इन लोगों को बहुत साल तक इंतजार करना पड़ा। Many died. बहुत लोग मर गए, Many suffered. और बहुत लोग क्लेश को झेले, Many waited for a very long time and gave up. और बहुत लोगों ने बहुत समय तक इंतजार किया और त्याग दिए। But today it is available for you for no wait. और आज आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है, कोई इंतजार करने की You जरूरत just नहीं। have to open your heart and say, "Come into my life," and Jesus will take birth in your life. और आज बस आपको इंतजार करना होगा और आपके हृदय को खोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, परमेश्वर मेरे हृदय में तू ले जगह, And He will be living in your life today. और वो आपकी जिंदगी में रहने लगेगा आज। My friend, it is possible that you have been waiting for many things for a very long time today. और मेरे मित्रों, बहुत समय से आप कुछ चीज को पाने के लिए इंतजार कर रहे Like हो, these people were waiting for their Savior for nearly 4,000 years. और जैसे कि ये लोग 4000 साल तक अपने उद्धारकर्ता के इंतजार में थे, वैसे आप भी कुछ चीज के इंतजार में हो। My friend, if it is taking time, और मेरे मित्रों, अगर ये कुछ समय को ले रहा है, then it is the best that is going to come.
और ये एक उत्तम चीज आने जा रहा है। Remember, before Jesus was born, there was a 400 years of silence. और यीशु मसीह के जन्म से पहले 400 साल आप देखते हो कि शांत का समय था Nothing from God. और परमेश्वर से कुछ नहीं हुआ था। And if you are in a time like that today, अगर आप आज इस प्रकार के समय में हो, my friend, you are in a time where nothing is happening, where you are in a time where you cannot hear from God, where you are receiving nothing from anywhere. It is a time of that silence because something big, very big, that has never happened ever in the world is going to happen in your life. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप परमेश्वर से कुछ नहीं सुन रहे हो, कुछ भी आपके साथ नहीं हो रहा है, तो ये सही समय है, कुछ अच्छा, कुछ उत्तम आपके साथ होने जा रहा है। My God, my friends, if God has been silent for you in your life, there is something big that God has planned to reveal in your life very, very, very soon. अगर कुछ चीज आपके साथ नहीं हो रहा है और परमेश्वर अगर आपसे शांत है, तो ये सोच लेना कि परमेश्वर बहुत जल्द आपके लिए कुछ प्रकाश करने जा रहा है। My favorite verse in the Bible is Habakkuk chapter 2 verse 3. और मेरे जो प्रिय जो वचन है बाइबल से वो वचन है हबक्कुक उसका 2 का 3 आयत। It says like this, for this message is witness for what it's decreed. It gives reliable testimony about how matters will turn out. Even if the message is not fulfilled right away, wait patiently, for it will certainly come to pass. It will not arrive later. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोचते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। My friends, everything that God has promised you, और मेरे मित्रों, जितना भी चीज परमेश्वर ने आपके साथ वायदे it किए is हैं, definitely going to happen. और ये सच में होने जा रहा है। Think of it like you are in that 400 years of silence. और आप ऐसे सोचो कि आप उस 4 साल के शांत समय में हो। You are waiting for a prophet, you are waiting for some sign, you are waiting for something to happen in your life. और आप भविष्य वक्ताओं के इंतजार में हो, कुछ चिन्ह चमत्कार के इंतजार में हो, और कुछ होने हो इसके इंतजार में हो। But my friends, that things will not happen. लेकिन मेरे मित्रों, वो चीज नहीं होने वाला है, Because the Son of God Himself is going to come down into your life very soon. क्योंकि मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर का पुत्र आपकी जिंदगी में वो बहुत जल्द आने You वाला are है। waiting for a prophet, but the source of that prophecy is going to come down into your life. वो आप एक भविष्य वक्ता के इंतजार में हो, लेकिन जो भविष्यवाणी के जो स्रोत है वो खुद आपकी जिंदगी में आने वाला है। Hallelujah. You are हालेलुया। waiting for this, but God is going to give you this much. और आप इतने से के लिए इंतजार हो, लेकिन परमेश्वर आपको इतना देने वाला है। Friends, if you are waiting for hope, you will have blessed assurance as your hope. और अगर आप आशा रखे हो तो परमेश्वर वो आपको वो आशीष के आशा को देने वाला है। This Christmas, I want to encourage you that something big is going to happen in your life. और इस क्रिसमस में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस क्रिसमस में कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी At जिंदगी में। some point at the time, that wait has to finish. और उस बिंदु के समय में आपके साथ कुछ तो होने वाला है। Some of you might be waiting for 20 years, 30 years. You might be just waiting for few days, but the wait is going to get over, my friends. और कुछ लोग आप हो सकते हैं 30 साल से इंतजार कर रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं कुछ समय से इंतजार कर रहे हो, लेकिन वो जो इंतजार है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हालेलुया। That wait is going to finish now. और अभी वो जो आपके इंतजार है वो खत्म होने वाला है। Whatever you are hoping and expecting about, the greater things are going to come into your life. और जो आशा आपने रखा है, जो उम्मीद आपने रखा है, वो महान चीज आपकी जिंदगी में होने वाला है। Greater things are yet to come into your life. और जो महान चीज है वो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने People वाला है। were waiting for hope and they found Jesus. और लोग आशा के इंतजार में हैं और उनको यीशु मसीह मिला है। And today that same thing is going to happen into your life. You are waiting for anything. The answer is Jesus, and Jesus is coming down into your life today. This moment. और लोग
आशा के इंतजार में थे और उनको यीशु मसीह मिला। आप भी आज सही समय में आप कुछ चीज के इंतजार में हो और बहुत जल्द आपकी जिंदगी में भी यीशु आने वाला है। Today open your heart and welcome Jesus into your life. और आज आपके हृदय को आप खोलो और यीशु मसीह आज आपकी जिंदगी में आने वाला Let है। your heart become that manger, but He will take that rest in your place. और आपकी हृदय वो गौशाला बने और उसी गौशाले में परमेश्वर आने वाला है। Hallelujah. People waited and they found the answer. और लोग इंतजार किए और उस उत्तर को पाए। Best answer. और बहुत उत्तम उत्तर। And today, if you have been waiting for God, He is there at your doorstep. अगर आप आज इंतजार कर रहे हो तो आपके दरवाजे में परमेश्वर आज है। Just have to open your heart आपको बस आपके हृदय को खोलना है and welcome Him in. और आपको उसको स्वागत करना होगा। Remember, my friends, this season has a reason, and that reason is only Jesus Christ, not any other things that you see. और मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि इस जो समय का है, इस समय का एक कारण है और इस कारण यीशु मसीह खुद ही है। Let this Christmas be a Christ-centered Christmas in your life. और ये मसीह का जन्मदिन यीशु मसीह पे आधारित हो आपकी जिंदगी में। Let you celebrate Christmas with your family, with your friends, but let it be a Christ-centered Christmas. और ये इस मसीही जन्मदिन में आप परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ मनाएं, लेकिन ये याद रखें कि ये मसीह जन्मदिन ख्रिस्ट केंद्रित होना चाहिए। It must be a Christ-centered, but Christ must be the King, and all the attention must be on Christ alone. और ये जो जन्मदिन मसीह केंद्रित हो और आपके सारे जो ध्यान है मसीह यीशु पे रहे। Thank you for watching us today. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप आज देखें। We want to take this privilege to wish you a happy Christ-centered Christmas. और हम इस सौभाग्य को लेकर आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो मसीही जन्मदिन ख्रिस्ट केंद्रित मसीह जन्मदिन हो। Have a blessed time with your family, with your friends, with your dear and close ones. आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके करीब रिश्तेदारों के साथ ये बहुत ही आशीष का दिन बने। Let Christ have the greatest place in your life. और मसीह ही आपकी जिंदगी में एक बड़ा सा जगह ले। And remember, the wait that you are having is going to finish very soon. और याद रखें, जिस इंतजार आप कर रहे हो वो इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला God है। bless you, and let us just declare a prayer over your life this Christmas. और परमेश्वर आपको आशीष दे और हम बस आपकी जिंदगी में कुछ प्रार्थना को घोषणा करना Let चाहते us हैं। pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and praise you for everyone who is watching this alone. और स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज के संदेश को देख रहे हैं। Lord, let them have the best Christmas of their life. और परमेश्वर होने पाए कि उनके जिंदगी में ये उत्तम मसीह जन्मदिन बने। This Christmas, let Jesus shine in their life. और इस क्रिसमस उनके जिंदगी में चमके। Let Jesus be the first and foremost thing in their life this Christmas. और होने पाए परमेश्वर यीशु मसीह उनके जिंदगी में प्राथमिकता बने। Lord, we pray for people who are waiting for your deliverance, O Lord. और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता जो इंतजार कर रहे हैं उद्धार पाने के Lord, लिए। let their wait finish in Jesus' name right now, O Lord. होने पाए परमेश्वर पिता उनके जो इंतजार है यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। Let them receive a new blessing right now in their life. होने पाए परमेश्वर पिता अभी इसी वक्त उनके जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से आशीष को वो पाए। Lord, bless each and everyone who has been waiting for you, O Lord Jesus. और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष मिले जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। Give you all the glory and honor on this Christmas, O Lord Jesus. और इस मसीही जिंदगी जन्म में परमेश्वर पिता हम आपको सारा महिमा और जलाल देते हैं। We praise you and we lift your name on high. हम आपको स्तुति देते हैं और आपके नाम को ऊंचा रखते हैं। All glory to be you alone. और परमेश्वर पिता हम सारे महिमा बस आपको देते We हैं। ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen.
आमीन। Thank you for watching us on your Christmas day. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज इस जन्मदिन में, यीशु मसीह के जन्मदिन में इस वीडियो को आपने If देखा। you have been blessed by this Christmas message, अगर आप इस क्रिसमस संदेश के जरिए अगर आशीषित हैं, then share it with someone. इस वचन को आप किसी दूसरे के साथ बांटें Let them be blessed, और उनको भी ये आशीष मिले and let you become a reason of blessing, a source of blessing for them. और आप इस आशीष का कारण, इस आशीष का स्रोत बनने पाए। Thank you so much. God bless you, and we'll see you this Sunday. और परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते हम फिर से इस संडे को हम मिलेंगे। Amen. आमीन।